اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کا خون رنگ لائے گا۔ جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ سامنے لائی جائے۔ جے آئی ٹی نے حکمرانوں کی کرپشن کا ایکس رے کر دیا۔ میاں محمود الرشید، منظور وٹو اور لیاقت بلوچ کا عوامی تحریک کے جلسے سے خطاب۔ عوامی تحریک کا جلسہ، استنبول چوک کنٹینرز لگا کر بلاک، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ اے سی سٹی عبداللہ خرم کا ناصر باغ کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب گاڈ فادر 2 ہیں۔ شہباز شریف نے نواز شریف کو 6 ارب روپے کے تحائف دیے، منی ٹریل میں ذکر نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو عہدے سے ہٹایا جائے، تحریک انصاف کا ریفرنس تیار۔ بابر اعوان کی پریس کانفرنس۔ پیپلز پارٹی رہنما منظور وٹو سے جماعت اسلامی اور عوامی تحریک کے رہنماؤں کی ملاقات، اپوزیشن جماعتوں کی جے آئی ٹی رپورٹ پر مشاورت۔ وزیر اعظم استعفیٰ دیں، وکلا ڈٹ گئے، کرسی کی خاطر ملک کا امیج برباد نہ کریں۔ سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا تو حفاظت کریں گے، وکلا کی نیشنل ایکشن کمیٹی کا اعلامیہ جاری۔ پاناما کیس میں ملوث افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کا مطالبہ۔ عوام کھوٹے کھرے کی پہچان رکھتے ہیں، ملک کی ترقی کی قیمت پر ہر روز نیا تماشا لگانے والے اپنا طرز عمل بدلیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے رکن قومی اسمبلی راؤ محمد اجمل سے ملاقات۔ طلبہ وزیر اعظم کی حمایت میں نکل آئے، ایم ایس ایف کے طلبہ کو نواز شریف کے حق میں ایم اے کالج سے سیکریٹریٹ چوک تک ریلی، قائد کے حق میں نعرے بازی۔ مال روڈ اور ٹاؤن ہال کے سامنے بینرز کس نے لگائے؟ 24 گھنٹے گزر گئے، نامعلوم افراد نہ مل سکے۔ لارڈ میئر کا کہنا ہے کہ بغیر فیس کے کسی کو مال روڈ پر بینر لگانے کی اجازت نہیں۔ جے آئی ٹی ارکان اتنے بڑے کیس کی چھان بین کے اہل نہیں تھے، تحقیقات کی بجائے انتقامی کارروائی کرنا شروع کر دی۔ ہم سب ایک ہیں، کوئی استعفیٰ نہیں دے گا۔ وفاقی وزیر برجیس طاہر کی میڈیا سے گفتگو۔ ترکی کی طرح عوام کی حفاظت کی ذمہ داری ریاست کی ہے۔ ترکی کے عوام نے جمہوریت کی بقا کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا تقریب سے خطاب۔ پہلوانوں کے لیے بڑی خوشخبری، اب ماہانہ 25,000 روپے تنخواہ اور خصوصی راشن الاؤنس بھی ملے گا۔ فوڈ اتھارٹی کا 300 پہلوانوں اور باڈی بلڈرز کو نوکریاں دینے کا فیصلہ۔ سمن آباد میں جعلی کیچپ تیار کرنے والی صفا پروڈکشن فیکٹری پکڑی گئی، 7,000 کلو جعلی کیچپ برآمد، فیکٹری سیل۔ رنگ روڈ منصوبے کے لیے اراضی غیر قانونی طور پر حاصل کی جا رہی ہے۔ رنگ روڈ کی تعمیر پر ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف بحریہ ٹاؤن نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی، سنگل بینچ کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ اثر نو تعمیر کے دوران کینال روڈ 2 فٹ تک اونچی، قریبی آبادیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی، ملحقہ آبادیاں بارش میں زیر آب آنے کا خدشہ، آبادی کو خطرہ نہیں، ایل ڈی اے کا موقف۔
ऑरेंज ट्रेन पैकेज 2 के 5 स्टेशन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कामों के लिए चीनी कॉन्ट्रैक्टर्स के सुपुर्द। ख्वाजा अहमद हसान की जेर सदारत ऑरेंज ट्रेन मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। आला हुक्काम के हमरा पैकेज 2 के कास्टिंग यार्ड और स्टीम क्यूरर प्लांट का भी दौरा। डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद और डीजी एलडीए की सेशन कोर्ट में आमद। सेशन जज और लाहौर बार की क़यादत से मुलाकात। डिप्टी कमिश्नर की वकला के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। सेशन जज आबिद हुसैन कुरैशी और सीनियर सिविल जज का वीडियो वॉल का दौरा, हुक्काम की ब्रीफिंग। सेशन जज लाहौर का कहना है कि तमाम अदालतों और कचहरियों की खुद निगरानी करूंगा। डीआईजी ऑफिस में ऊप्स रूम का भी दौरा, डीआईजी की ब्रीफिंग। छोटे मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया। मुआशरा इज्जत और एहतराम की बुनियाद पर चलता है। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान का तकरीब से खिताब। ख्वाजा सलमान रफीक और सेक्रेटरी सेहत बग्घी में सर्विस अस्पताल के ऑडिटोरियम में आए। साबिक डायरेक्टर एंटी करप्शन आफ्ताब गनी के खिलाफ 2 अरब के करप्शन केसेस में अहम पेशरफ्त। मुलजिम 18 जुलाई को फिर तलब। असासों की तफसीलात इंक्वायरी कमेटी को फराहम करेंगे। सीवरेज के इंतजामात में ताखीर पर जेल रोड के ताजरों का वासा के खिलाफ मुजाहिरा। सर्विस रोड पर गंदे पानी की मौजूदगी पर सरापा एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। सानिहा अहमदपुर शर्किया का एक और जख्मी दम तोड़ गया। जिना हॉस्पिटल में जहां अफराद की तादाद 19 हो गई। एक जख्मी का हाल जेर इलाज। कानून सबके लिए बराबर। डायरेक्टर एक्साइज शकील उर रहमान का एक्साइज मुलाजिमीन की मोटरसाइकिलों पर गैर नमूना नंबर प्लेटों का नोटिस। एहलकारों की मोटरसाइकिलों से जाली और गैर नमूना नंबर प्लेट्स उतार दी। साबिक वजीर कानून खालिद रांझा के बेटे हसन रांझा ने PAF मार्केट के करीब मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। मुलजिम हसन रांझा गिरफ्तार। बाबू साबू इंटरचेंज पर मोटरवे पुलिस और कस्टम इंटेलिजेंस की कार्रवाई। 17.5 लाख रुपए मालियत के स्मगलशुदा 58 मोबाइल फोन्स बरामद। क्रिकेटर मोहम्मद इरफान के आंगन में फूल खिल गया। बेटे की पैदाइश से खुशियां दोबाला। नाम मोहम्मद हैदर अली रख दिया। फातिमा चना डिग्री कॉलेज चूना मंडी की इमारत तारीखी रवायात की हामिल। ध्यान सिंह की हवेली के नाम से मंसूब इमारत अदम तवज्जी से खंडरात में तब्दील। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज और मैं हूं मुनीसे मोइन और मैं हूं नवीद निजामी। हेडलाइंस आप जान चुके, तफसीलात का आगाज करेंगे। सरबराह पाकिस्तान अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिरुल कादरी इस वक्त जलसे के शिरका से खिताब कर रहे हैं। आम मजदूर को आर्टिकल 62 और 63 के मफहूम याद करा दिए गए। मैं ये बात फिर दोहरा के कह रहा हूँ, पिटीशन उस वक्त आर्टिकल 62 और 63 को नाफिज कर दिया गया होता हकीकी रूप के साथ, और ये कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पनामा पिटीशन लेके गया था उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता, इनसे वाकिफ था। तो आज कौम को ये दिन हर शख्स उस बात को मानने लग गया, और ये घनौने किरदार जो पनामा लीक्स की सूरत में सामने आए
میں تو بڑی مدت سے ان سے واقف تھا. آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہر شخص اس بات کو ماننے لگ گیا ہے. سپریم کورٹ نے اس کیس کے ان کرداروں کا احتساب اسی وقت ہو چکا تھا. آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جب پاناما لیکس کے حوالے سے کر رہا ہوں سپریم کورٹ نے اس کیس کی سماعت کی. اس جے آئی ٹی بارے میں مجھے کوئی خیر کی توقع نہیں. بات درست ہے اور میں برملا اس کا سمجھتا تھا کہ یہ نون لیگ کا الیکشن میرے تحفظات تھے. اس کے آئندہ اس جے آئی ٹی کے بارے میں مینیفیسٹو مجھے کوئی خیر کی توقع نہیں. میرا یہ خیال تھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ نون لیگ کا الیکشن اور سابقہ تاریخ کی روز کے آئندہ کے انتخابات کا کہ یہ کبھی مینیفیسٹو تیار فائنڈنگز نہیں کر سکتے. اور میرا یہ خیال تھا سابقہ تجربات، سابقہ مشاہدات اور سابقہ تاریخ کی روشنی میں پہلی بار کہ یہ کبھی بھی جرأت مندانہ فائنڈنگز نہیں کر سکتے. جے آئی ٹی کی رپورٹ نے مگر مجھے اس بات کی خوشی ہے جب میرے اندازوں اور میرا تجزیہ پہلی بار غلط کیا ہوا آدمی کوئی اور ٹیک اوور کر لیتا ہے. اس کا مطلب ہے صرف چہرہ بدلا ہے، فرنٹ مین کرپٹ نظام کا فرنٹ مین بدلا ہے مگر کرپشن کے نظام کا تسلسل برقرار ہے. تو کیا ملک بار بار ایسے حادثات کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ملک سارا سال لٹ جانے کے بعد پھر کسی نئے پاناما لیکس کا انتظار کرے گا، پھر سپریم کورٹ کسی نئے کیس کی سماعت کرے گی اور پھر کوئی نئی جے آئی ٹی بنے گی، پھر اس کی فائنڈنگز آئیں گی اور اس کے نتیجے میں پھر ایک اور نواز شریف برطرف ہوگا اور نظام اسی طرح تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا. اگر اللہ نہ کرے ایسی صورت ہوتی ہے تو اس میں ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان، اس نے اس کرپٹ نظام کو جنم دیا اور کرپٹ نظام نے نواز شریف صاحب اور ان کی کرپشن کو تحفظ دیا. یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں. ان کے خاتمے کے ساتھ ہمیں بہت بڑا کڑا احتساب کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ کے ہر اس شخص کا احتساب ہونا چاہیے جو اقتدار میں رہا ہے، پارلیمنٹ میں ممبر ہے یا رہا ہے، وہ ملک کا نمائندہ رہا ہے قوم کا یا نمائندہ بننے کے لیے آگے تیار ہے. آرٹیکل 62-63 کے مطابق اسی طرح جے آئی ٹی کے ذریعے ایک ایک فرد کا احتساب ہونا چاہیے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور ہر شخص بے نقاب ہو اور اس کرپشن پر مبنی نظام کو جڑوں سے ختم کیا جائے. ہمیں اس نظام کی تطہیر کرنی ہے تاکہ ملک کے اندر جمہوریت اپنی حقیقی معنی میں بحال ہو. ملک میں آئین کی بالادستی ہو، اداروں کی بالادستی ہو، افراد کی بالادستی نہ ہو. اگر افراد بدلتے رہے اور کرپشن پر مبنی نظام جو کا تو برقرار رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ نظام کبھی بھی اداروں کو مضبوط اور مستحکم نہیں ہونے دے گا. نئے پاناما لیکس کا انتظار کرے گا تو کیا ملک بار بار ایسے حادثات کا متحمل ہو سکتا ہے اور پھر کوئی نئی جے آئی ٹی ملک سارا سال پھر اس کی فائنڈنگ لٹ جانے کے بعد اور اس کے لیے کسی نئے پاناما لیکس کا انتظار کرے گا، برطرف ہوگا، پھر سپریم کورٹ کسی نئے کیس کی سماعت کرے جاری رہے گا اور پھر کوئی نئی جے آئی ٹی بنے گی، پھر اس کی فائنڈنگز آئیں گی اور اس کے نتیجے میں پھر ایک اور نواز شریف برطرف ہوگا. ہمیں دیکھنا اور نظام اسی طرح تسلسل کے ساتھ نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان اللہ نہ کرے ایسی صورت ہوتی ہے اس کرپٹ نظام ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور کرپٹ نظام نے نواز ہمیں دیکھنا یہ ہے ان کی کرپشن کو تحفظ کہ نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان آپس میں لازم و ملزوم ہیں. اس نے اس کرپٹ نظام کو جنم دیا خاتمے کے ساتھ اور کرپٹ نظام نے نواز شریف صاحب اور ان کی کرپشن کو تحفظ دیا اور پارلیمنٹ کے ہر اس شخص کا احتساب ہونا چاہیے. ان کے خاتمے کے ساتھ رہا ہے ہمیں بہت بڑا کڑا احتساب کرنا چاہا ہے اور پارلیمنٹ کے ہر اس شخص کا احتساب ہونا چاہیے نمائندہ بننے کے لیے آگے تیار ہے جو اقتدار میں رہا ہے. 62-63 کے پارلیمنٹ میں ممبر ہے، اسی طرح جے آئی ٹی رہا ہے، ایک ایک وہ ملک کا نمائندہ رہا ہے قوم کا جو نمائندہ بننے کے لیے آگے تیار ہے اور ہر شخص بے نقاب. آرٹیکل 62-63 کے مطابق اور اسی طرح جے آئی ٹی کے ذریعے ایک ایک فرد کا احتساب ہونا چاہیے. اس نظام کی تطہیر دودھ کا دودھ اٹھانے والا ہے ان کو اس سیاسی نظام سے نکال کے باہر پھینکنا ہوگا. کڑے احتساب کے ذریعے ہمیں بہت بڑے تطہیر کی ضرورت ہے تاکہ آئین اپنی حقیقی روح کے ساتھ بحال ہو اور قانون کی حقیقی بالادستی قائم ہو اور اس ملک میں عدل اور انصاف کا راج قائم ہو
ادارے اپنے اندر اکاؤنٹیبلٹی اور خود احتسابی کا ایک نظام وضع کر سکے اور ایسے لوگوں کو اس طرح بے تحاشا لوٹ مار کر کے پورے ملک کو تباہ و برباد کرنے کے مواقع آئندہ کسی کو میسر نہ آئے. ہمیں اس امر پہ غور کرنا ہوگا. اس موقع پر میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو فائنڈنگز پاناما لیکس کے باب میں سامنے آئی ہیں جی آئی ٹی کے ذریعے، اس کے انجام کے طور پہ تو نواز شریف صاحب اور ان کے سارے حواری جو پچھلے 1.25 سال سے، آپ اندازہ کریں لندن فلیٹ کا، یہ نواز شریف اور ان کے خاندان کی کرپشن کے سمندر کا ایک قطرہ ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، سلطنت شریفیہ کی کرپشن کے سمندر کا ایک قطرہ ہے لندن فلیٹس، جو پاناما لیکس کی صورت میں پکڑے گئے. ایک قطرہ ہے. اس ایک قطرے کو بے نقاب کرنے میں 1.25 سال لگ گیا، قوم کا وقت ضائع ہوا اور سب سے بلند ترین سطح کے ادارے انوالو ہوئے اور ابھی وہ بے نقاب ہوئے ہیں، ایکشن نہیں ہوا. تو اگر پورے سمندر کو بے نقاب کرنا ہو تو اس کا مطلب ہے صدیاں لگ جائیں گی، 100 نسلیں گزر جائیں گی. تو کیا ملک اسی لیے بنا ہے کہ بس اسی کام میں سارے ادارے کرتے رہیں؟ اداروں کے اندر ایک جان ہونی چاہیے، اداروں کے اندر شفافیت ہونی چاہیے، اداروں کے اندر احتساب کی ایک اپنی خود کار کیفیت اور طاقت اور قوت ہونی چاہیے. حقیقی جمہوریت جو ہوتی ہے وہ خود احتساب کرتی ہے. حقوقی جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئین بالادست ہوتا ہے، قانون بالادست ہوتا ہے، ادارے بالادست ہوتے ہیں. افراد آئین کو، قانون کو، اداروں کو مروڑ تروڑ کے اپنی منشا کے مطابق ان سے فیصلے نہیں لے سکتے. بڑے بڑے طاقت اور حکمران بھی آئین، قانون اور اداروں کے سامنے کمزور ہو جاتے ہیں. اس نظام کو اس پاکستان میں لانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے پاناما کیس کے نتیجے میں جو تحقیقات آئی ہیں، میکسیمم یہ لوگ جیل میں جائیں گے، برطرف ہوں گے، جیل میں جائیں گے. مگر اس نظام کو ختم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ لوٹ مار بھی نہ ہو اور قتل عام بھی نہ ہو. ادھر ماڈل ٹاؤن کا کیس جس کے لیے احتجاج، سراپا احتجاج بن کر ہمارے کارکن، پھر 3 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے. 14 انسانوں کی لاشیں گرائی گئی تھی، 100 کے قریب انسانوں کے جسموں کو گولیوں سے بھون دیا گیا تھا. اس لیے ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہی تھا نا کہ وہ کرپشن پر مبنی نظام کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے. ان کا جرم یہی تھا کہ وہ غریبوں، محتاجوں، بے کسوں، یتیموں اور کمزوروں اور محروموں اور مجبوروں کے حقوق کی بات کر رہے تھے. ان کا جرم یہی تھا کہ وہ اس ملک میں قانون اور انصاف کا راج مانگ رہے تھے. ان کا جرم یہی تھا کہ وہ آئین پاکستان کے پہلے آرٹیکل سے لے کے 40 آرٹیکلز کے تک پاکستان کے عوام کو حقوق دلانے کی بات کر رہے تھے. ان کا جرم یہی تھا کہ وہ آرٹیکل 62-63 کے تحت مجرموں کا مواخذہ چاہتے تھے. وہ آواز بلند کر رہے تھے اس باطل نظام کے خلاف. انہوں نے جانیں دی ہیں ہمارے کارکنوں نے، لاشیں گری ہیں، ہمارا خون بہا ہے، ہم نے 72 دن دھرنا دیا ہے صرف اس کرپٹ سسٹم کے خلاف. لیکن آج کے دن تک ان شہیدوں کے خون کو اور ان کے وارثوں کو انصاف نہیں مل سکا. آپ دیکھیے، اگر نظام کے اندر شفافیت ہوتی، نظام کے اندر اور اداروں کے اندر کوئی طاقت ہوتی، انصاف اور نظام کے اندر، انصاف فراہم کرنے والے اداروں کے اندر اور نظام کے اندر عدل اور انصاف کی کوئی سپیس، کوئی جگہ ہوتی، تو 3 سال سے ماڈل ٹاؤن کے لیے ہم در بدر دھکے نہ کھا رہے ہوتے. آج قاتلوں میں سے اصل پورا منصوبہ ساز نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، ان کے باقی حواری، ان کے وزراء، وہ سارے طلب ہی نہیں کیے گئے عدالت میں. ہمارے استغاثہ کے نتیجے میں ہماری ایف آئی آر پر کارروائی کوئی نہیں ہوئی. وہ عدالت ان کو طلب کرنے کی جرت نہیں رکھتی. اور 126 پولیس افسران جن کو طلب کیا گیا ان میں ایک شخص بھی جیل میں نہیں ہے. کوئی مفرور ہو گئے، فرار کرا دیا گیا، اور باقی سب ترقی یافتہ ہو گئے اور ترقی پا کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں. یہ ہے اس ملک کا آئین، یہ ہے اس ملک کا قانون، یہ ہے اس ملک کا انصاف، یہ ہے اس ملک کی جمہوریت اور یہ ہے اس ملک کا نظام، جس نظام کو ہم چاہتے ہیں کہ جاری رہے. ہم چاہتے ہیں یہ نظام بھی ریل نہ ہو. 126 سرکاری افسر پولیس کے طلب ہوئے، ایک شخص بھی جیل نہیں ہے. کیا پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ ہے جس میں 126 پولیس افسران دہشت گردی اور قتل کے کیس میں عدالت ان کو طلب کرے اور ایک شخص بھی جیل میں نہ ہو؟ انہیں ضمانتیں لینے کی بھی
करवाने की भी जरूरत नहीं है। ये सब कुछ जो जुल्म हो रहा है, जस्टिस बाकिर नजफी कमीशन की रिपोर्ट सिर्फ पब्लिक करवाने के लिए हम हाई कोर्ट में बैठे और सुप्रीम कोर्ट तक गए हुए हैं, वो पब्लिक नहीं हो रही। आखिर कोई तो है ना जो उसको दबा के बैठा है। इसका मतलब है वो जो शख्स दबा के बैठा है वो कानून से ज्यादा ताकतवर है, वो इदारों से ज्यादा ताकतवर है। अगर सिर्फ अफराद बदले और निजाम न बदला तो इसका मतलब है पूरा मुल्क उस ताकतवर तबके और अशराफिया के हाथ में इसी तरह यरहमाल रहेगा। गरीब को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा, कमजोर को कभी अदल इंसाफ नहीं मिलेगा। हमें आप देखिए जीआईटी की रिपोर्ट आई है पनामा लीक्स पर, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, खैर जानिबदार बनी, वो रिपोर्ट पब्लिक भी हो गई, उसके एक एक लफ्ज की खबर है पूरी दुनिया को, ऑनलाइन आ गई है। हमारी रिपोर्ट 3 साल हो गए जस्टिस बाकिर नकवी कमीशन की, वो पब्लिक नहीं हो सकी और हम सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। मैं आज सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करता हूं जस्टिस बाकिर नकवी कमीशन रिपोर्ट को भी इसी तरह पब्लिक किया जाए जिस तरह पनामा लीक्स की जीआईटी को बेनकाब किया। उसकी रिपोर्ट बेनकाब हुई है, उसकी रिपोर्ट पब्लिक हुई है। जस्टिस बाकिर नकवी कमीशन की रिपोर्ट आखिर पब्लिक क्यों नहीं हो रही? यहां माल लूटने की बात थी, जीआईटी की जो माल लूटने की बात थी, वहां जानों से खेलने की बात, वहां खून बहाया गया। वो रिपोर्ट भी पब्लिक करें और जो किरदार उस रिपोर्ट में जिम्मेदार बनते हैं उनको अरेस्ट किया जाए, उन्हें जेल भेजा जाए और उनके साथ वही सलूक किया जाए जो उस मुल्क में आम कातिल का होता है। ये लोग कातिल भी हैं, ये लोग डाकू भी हैं। जो आम दूसरे डाकू और कातिल के लिए जो कानून है वो कानून इन डाकू और कातिलों के लिए क्यों नहीं है? हम इस मौका पे करारदाद पेश करते हैं। आज 15 जुलाई के एहतजाज में माल रोड पर हजारों पाकिस्तानियों और शहरियों के एहतजाजी जुलूस में कि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान से अपील की जाती है कि वो अदालती हुक्म जो हाई कोर्ट लाहौर का हुक्म था और साबिक आर्मी चीफ की मुदाखलत से और कोशिश से जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उस एफआईआर पे आज तक अमल दरामद नहीं हुआ और मॉडल टाउन के वरसा को उस एफआईआर के मुताबिक, उस एफआईआर का नंबर 696 है, 696, उसके मुताबिक मुजरिमों को आज तक अरेस्ट नहीं किया गया। और जस्टिस बाकिर नकवी कमीशन की तहकीकात की रोशनी में सानिया मॉडल टाउन के जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया था, शरीफ बिरादरान और दीगर वज़रा और साबिक आईजी पंजाब और डीआईजी, सारे उनमें कोई शख्स आज तक तलब नहीं किया गया। हमारा मुतालबा है और आज इस करारदाद के जरिए सुप्रीम कोर्ट से हम मुतालबा करते हैं कि वो सानिया मॉडल टाउन में मुलव्वस और नामजद उन सारे मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने का हुक्म दे और उन्हें शामिल तफ्तीश करे और 3 साल से जो शहीदों के बुरासा गरीब मुंतजिर हैं इंसाफ के, उनको इंसाफ दिलाने के लिए मुअस्सिर कार्रवाई किया जाए और उन जख्मियों को इंसाफ दिलाया जाए, उन माजूरों को इंसाफ दिलाया जाए जो आज तक दर बदर इसलिए धक्के खा रहे हैं कि उन्हें कत्ल करने वाले और उन्हें जख्मी करने वाले और उनकी जान माल पर डाकाजनी करने वाले ताकतवर लोग हैं, हुक्मरान लोग हैं, वफाकी हुक्मरान भी और पंजाब के हुक्मरान भी। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह पनामा केस में एक आजाद जीआईटी ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट दी है और मुल्क के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल का रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है, मैं समझता हूं कि एक और केस मॉडल टाउन के शहीदों का भी मुंतजिर है सुप्रीम कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट उस पर भी मुतवज्जे हो और उन मजलूमों, उन महरूमों, उन यतीमों और उन बेवाओं की आहों को सुने और उनके लिए जस्टिस बाकिर नकवी सिटिंग जज हैं, उनकी रिपोर्ट को मंजर आम पे ला के उसके मुताबिक और हमारी दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक अमल दरामद किया जाए और करार वाकई सजा इन तमाम नामजद मुल्ज़मान को दी जाए। ये वो वक्त है, कौमों के पास ये लम्हे हमेशा नहीं आते, कभी कभी आते हैं। ये वक्त है, इधर इनकी चोरी, इनकी डाकाजानी बेनकाब हो गई है और मॉडल टाउन में इनका कातिल होना बेनकाब हो गया। 2 बड़े घनौने जुर्म हैं। इसके बाद भी अगर मुल्की इदारे और कौम इनको बरकरार रखते हैं या इनके कायम करदा निजाम को बरकरार रखते हैं तो मैं समझता हूं कि फिर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में दुआ ही की जा सकती है। हम आइंदा नस्लों को क्या मुस्तकबिल दिखाएंगे?
क्या अपना मुस्तकबिल रोशन जो मुस्तकबिल है उसको हमेशा हमेशा के लिए तारीख कर देना चाहते हैं? क्या मुल्क की आजादी और इस्तेहकाम को दांव पे लगाना चाहते हैं? ये लोग करप्ट निजाम और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते, हमें दो में से एक का इंतखाब करना होगा। इस मौका पर मैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के जुमला कायदीन को और जुमला कारकुनान को और तमाम सियासी जमातों के उन रहनुमाओं को और उन कारकुनान को जो आज एहतजाज में हमारे साथ शरीक हुए हैं, उन सारों को मुबारकबाद भी देता हूं और जुमला जमातों के रहनुमाओं और कारकुनान की शिरकत पर उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं और मीडिया के तमाम अराकीन, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फोटोग्राफर्स और बाकी शुरका और शहरियों को उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आज इस पूरे एहतजाज को कवर किया और मेरी आवाज को पूरी कौम तक पहुंचाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कौम का हामी और नासिर हो, मददगार हो और वो वक्त जल्द आए जब जुल्म की अंधेरी रात का खात्मा हो, अदल और इंसाफ और कानून की बालादस्ती का सवेरा तुलू हो। शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरबराह पाकिस्तान अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिरुल कादरी जलसे के शुरका से खिताब कर रहे थे और खिताब के दौरान उन्होंने जो चीदा बातें की उनमें सबसे अहम बात उनकी यही थी कि कानून और आइन की पासदारी होनी चाहिए, आइन के 62 और 63 की पासदारी होनी चाहिए। किसी भी फर्द या किसी भी इदारे को यह हक नहीं है कि वो कानून से बालातर होकर काम करे। JIT की रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने कहा कि JIT पे उनको एतमाद नहीं था, लेकिन JIT ने इंसाफ की फराहमी का बोलबाला किया। पाकिस्तान अवामी तहरीक का नासिर बाग में जलसा, अपोजिशन रहनुमाओं ने जस्टिस बाक़िर नजफी रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं ने मजीद क्या कहा, जानेंगे इस रिपोर्ट में। वजीर आजम चोर है, वजीर आजम का इस्तीफा बनता है। हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान अवामी तहरीक का नासिर बाग में जलसा, पीपल्स पार्टी PTI, जमात इस्लामी, MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने मुतालबा किया कि बाक़िर नजफी रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर लाया जाए। इस मौके पर साबिक वजीर आला पंजाब और PP रहनुमा मियां मंजूर वट्टू का कहना था कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने जब भी बुलाया पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी होगी, जालिमों की हुकूमत गिरने वाली है। मैं और मेरे साथी हमेशा जब भी आपने पुकारा है, जब भी डॉक्टर साहब ने पुकारा है, हम हाजिर हुए हैं। हम आपके साथ खड़े हैं, आपका साथ दिया है, आइंदा भी देते रहेंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। जलसा से खिताब करते हुए साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि तमाम जमातों और 20 करोड़ आवाम का मुतालबा है कि वजीर आजम मुस्ताफी हों। उनको अपनी सफाई करने का मौका जरूर है, वो अपनी सफाई सुप्रीम कोर्ट में पेश करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सफाई पेश करने से पहले वजीर आजम का इस्तीफा बनता है। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि शरीफ खानदान के खिलाफ अवाम की चार्जशीट बहुत तवील है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद का कहना था कि अगर बात न मानी जाए तो गो नवाज गो पर तमाम जमातें इकट्ठी हो जाएं। अगर घी सीधे हाथों ना निकला तो हम सबको एक निकाती झंडे पर इकट्ठा होना होगा, और वो एक निकाती झंडा क्या है? वो है गो नवाज, गो नवाज। MQM पाकिस्तान के सेनेटर मियां आतिकुर रहमान का कहना था कि अगर अदलिया आजाद है तो सानहा मॉडल टाउन का भी इंसाफ करे। जलसे से खिताब करते हुए रहनुमा अवामी तहरीक खुर्रम नवाज गंडापुर का कहना था कि नून लीग के अलावा तमाम सियासी जमातें उनके साथ हैं और उनकी नुमाइंदगी पिंडाल में मौजूद है। JIT रिपोर्ट के हवाले से तहरीक इंसाफ की क़यादत का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि 20 करोड़ आवाम का मुतालबा है कि वजीर आजम मुस्ताफी हो जाएं। करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार शख्स को नेशनल बैंक का सदर बना दिया गया। रहनुमाओं का मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। दुबई की हुकूमत ने लिख के दे दिया है कि यहाँ पर कोई फैक्ट्री 12 मिलियन दिरहम जो है यहाँ से नहीं कहीं गया है। कतर की हुकूमत ने लिख के दे दिया है कि किसी बैंकिंग ट्रांजैक्शन में ये पैसे नहीं आए हैं। तो इन हालात में मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफ़ा बनता है। दूसरी बात जो अहम बात है कि हुकूमत को जो अदारे हैं उनसे कन्फ्रंटेशन नहीं करनी चाहिए। जब वो JIT पे तनकीद कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो मुल्क के 6 अदारों पे जो वहाँ पर जिनको रिप्रेजेंट किया गया था
उन सब से कन्फ्रंटेशन चाहते हैं। ना ये उनकी पार्टी के मफाद में है, ना ये मुल्क के मफाद में है, ना ये जमहूरियत के मफाद में है। SCCP का एक शख्स ऐसा वहाँ पर उन्होंने चेयरमैन बनाया है जो कि रैकेट टेम्परिंग में मुलव्वस है, और लोगों ने एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने उसको गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया है। और मैं परज़ोर मुतालबा करता हूँ कि उसको अपने ओहदे से फिल फौर हटाना चाहिए। बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की, जिनका कहना है कि आवाम एहतजाज और इंतशार की सियासत और मुल्क की तरक्की में रुकावट डालने वालों से बेजार हो चुके हैं। मुट्ठी भर सियासी अनासर इक़्तिदार की खातिर मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली में रुकावट बन रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का और क्या कहना था, जानेंगे दानियाल राठौर से। दानियाल, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से मजीद? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया और कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्की मफाद को मुकद्दम रखा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पिछले 4 साल से अवाम की खिदमत कर रही है, तरक्याती मंसूबे लगा रही है, तवानाई के बुरान को काबू कर रही है, मगर धरना सियासत करने वाले और जल्द से जुलूस करने वाले वो मुल्क की तरक्की में रुकावट बन रहे हैं और मुख्तलिफ ड्रामे और मुख्तलिफ साजिशों की शक्ल में जो है मुस्लिम लीग नून के को जो है उनका इंतकाम करने की कोशिश में है, उनपे साजिशें करने की जरूरत है। मगर मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अवामी खिदमत की है और अवामी खिदमत करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया दानियाल राठौर। तफसीलात और भी शामिल करना भी बाकी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहेंगे और अब आपको बताएं कि MNA परवेज मलिक कलमा चौक में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। कि कोई ऐसा सबूत अभी तक आज तक नहीं है। हम दियानतदार लोग हैं। मियां नवाज शरीफ बिल्कुल मुहिब वतन है और आज अपनी चीज़ को समझ रहा है। आपके सामने इमरान को भी ये उसके खिलाफ भी एक ऐसा ही चार्ज है, उसको बार बार कहा जा रहा है कि आप इसकी डिफेंस को पेश करें और वो इसको तारीख लेकर आगे चला जाता है। तो ये सब आपके जो तरक्की हो रही है, जो आपका मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, उसको रोकने के लिए साजिश जो हम कहते हैं वो यही है। वो चाहते हैं कि कोई हरबा इस्तेमाल करके ये तरक्की को फिर रोका जाए और फिर आपके दुश्मन जो है उससे उसको सेटिस्फाइड हों और उस पर अमल कर सकें। तो भाइयों, मैं समझता हूँ आगे बढ़ेंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर आला शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए आईनी दरख्वास्त तैयार कर ली गई है, ताहम मुकर्रर अदालती वक्त में दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर ना की जा सकी। दरख्वास्त गुजार ने एतराज़ उठाया है कि शहबाज शरीफ अवामी ओहदा रखने के साथ ज़ाती कारोबार से मुंसलिक रहे। इमरान खान के वकील डॉक्टर बाबर अवान ने वज़ीर आला शहबाज शरीफ के खिलाफ आर्टिकल 199 के तहत दरख्वास्त तैयार की है। दरख्वास्त में शहबाज शरीफ के वज़ीर आला बनने की अहलियत को चैलेंज किया गया। दरख्वास्त गुजार ने एतराज़ उठाया कि शहबाज शरीफ अवामी ओहदा रखने के साथ ज़ाती कारोबार से मुंसलिक रहे और अपने भाई वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 6 अरब के तोहफ़े दिए, जबकि इस रकम की किसी भी फॉर्म पे मनी ट्रेल नहीं दी गई। दरख्वास्त में यह भी इल्ज़ाम लगाया गया कि शहबाज शरीफ ने अपने खानदान की मलकियत शुगर मिल्स के लिए भी असर रसूख इस्तेमाल किया है। इनके असासे आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि शहबाज शरीफ को वज़ारत आला और रुकन पंजाब असम्बली की हैसियत से नाअहल करार दिया जाए। वज़ीर आला शहबाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त अदालती वक्त खत्म होने की वजह से दायर ना की जा सकी, अब ये पीर को दायर होगी। उमर शाकिर, लाहौर न्यूज़। JIT रिपोर्ट के बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से इस्तीफा लेने के लिए अपोजिशन जमातें सरगर्म हो गईं। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और अवामी तहरीक का मुश्तरका तहरीक चलाने पर इत्तफाक। जमात इस्लामी और अवामी तहरीक के वफूद ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वट्टू से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात की है। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से इस्तीफा लेने के लिए अपोजिशन जमातें सरगर्म। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और अवामी तहरीक का मुश्तरका तहरीक चलाने पर इत्तेफाक। जमात इस्लामी और अवामी तहरीक के वफूद ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला पंजाब मंजूर वट्टू से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की।
नायब अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर फरीद पराचा और जनरल सेक्रेटरी लियाकत बलोच ने मियां मंजूर वट्टू से मुलाकात की, जबकि अवामी तहरीक के जनरल सेक्रेटरी खुरम नवाज गंडापुर भी उनसे मिलने आए। वफूद ने JIT रिपोर्ट पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मियां मंजूर अहमद वट्टू का कहना था कि पैनामा केस में वजीर आजम ने मुल्क की साख खराब की। पीपल्स पार्टी ने JIT रिपोर्ट के बाद वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा किया है। मुलाकात में मौजूद तमाम अपोजिशन रहनुमाओं ने इस्तीफा के लिए मुश्तरका तहरीक चलाने पर इत्तेफाक किया। कैमरा टीम के साथ अखलाक अहमद बाजवा, लाहौर न्यूज़। वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर बरजीस ताहिर ने मुश्तरका तहकीकाती टीम की रिपोर्ट को इंतकामी करार दे दिया है। हुकूमती वज़रा वज़ीर आज़म की हमायत में सामने आ गए। वज़ीर बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान बरजीस ताहिर ने पंजाब सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि JIT की रिपोर्ट तहकीकाती नहीं इंतकामी है। कानूनी टीम ने अब तक रिपोर्ट से 43 गलतियों की निशानदही की है। पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दाखिल करेंगे। तहकीकी रिपोर्ट नहीं बनी, ये इंतकामी रिपोर्ट बनी। हमारे जो कानूनी मुशीर हैं उन्होंने मिलकर अब तक तकरीबन 43 से ज्यादा उसकी गलतियों की निशानदही की है। बरजीस ताहिर का कहना था कि जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, लेकिन अपोजिशन का इस्तीफे का मुतालबा काबिले कबूल नहीं। उन्होंने मुस्लिम लीग नून में ग्रुप बंदी की खबरों की तरदीद की। हम जमहूरियत की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, हम अपोजिशन की अहमियत को तस्लीम करते हैं, लेकिन ये कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ना तो मुस्ताफ़ी होंगे। बरजीस ताहिर का कहना था कि वफाकी काबीना ने वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। किसी के कहने और साजिशों पर वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। कैमरामैन उस्मान शब्बीर के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए तलबा भी मैदान में आ गए। तफसीलात बताएंगे अरसलान हैदर अपनी इस रिपोर्ट में। MSF वजीर आजम के हक में बाहर निकल आई। MA कॉलेज से सेक्रेटरीट तक रैली निकाली गई। रैली में बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की। तलबा का कहना था कि वजीर आजम नवाज शरीफ हक पर हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं है। यूथ अपने लीडर के साथ खड़ी है। हम अपने कायद के साथ इज़हार यकजहती करते हैं और हम बताना चाहते हैं कि मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के ये नौजवान आपकी आवाज़ पे हर टाइम हर वक्त खड़े हैं। रैली के शुरा ने वजीर आजम के हक में नारेबाजी भी की। MSF रहनुमाओं ने कहा कि इमरान खान नाकाम हो चुका है, अवाम अब कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। कैमरामैन सलीम जानी के साथ असलान हैदर, लाहौर न्यूज़। शहर में अवेजा तुर्क सदर के कद आवर बोर्ड जिले इंतजामिया ने उतार तो दिए, मगर ताहाल ये पता ना चलाया जा सका कि ये बोर्ड किसने नस्ब किए थे। इमरान मलिक की रिपोर्ट देखिए। तुर्की में नाकाम फौजी बगावत का 1 साल मुकम्मल होने के हवाले से लगाए जाने वाला बोर्ड्स का मामला, जिले इंतजामिया ने रातों रात ये तमाम बोर्ड्स उतार लिए। बोर्ड्स पर 1 साल कबल तुर्क अवाम की जानिब से फौजी बगावत के नतीजे में सड़कों पर आने के मनाजिर पेश किए गए। अपोजिशन जमातों की जानिब से तनकीद के बाद बोर्ड्स तो उतार लिए गए, मगर बोर्ड्स किसने लगाए पता न चलाया जा सका। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद का कहना था कि किसी को भी बगैर इजाजत बैनर्स या बोर्ड लगाने की इजाजत नहीं है। रूल है कि माल रोड और शहर की और जो बड़ी शाहराएं हैं उनके ऊपर जब तक PHA से क्लियरेंस नहीं ली जाती और उनको बाकायदा पेमेंट करने के बाद इजाज़तनामा नहीं हासिल किया जाता, इन तमाम सड़कों के ऊपर किसी किस्म के बैनर नहीं लगने दिए जाएंगे, और अगर लग जाते हैं तो वो MCL का ड्यूटी है कि वो उनको फौरी तौर पर रिमूव कर दे। उधर अपोजिशन जमातों की जानिब से इस अमल को हुकूमत की सोची समझी हिकमत अमली करार दिया गया है। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। लाहौर की दुनिया में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ ही रहना है आपको। वेलकम बैक। मजीद तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे। रिंग रोड की तामीर के लिए घरों की जमीन एक्वायर करने की इजाजत देने का फैसला हकायक के बरक्स है। बहरिया टाउन ने लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज कर दिया है। उमर शाकिर की रिपोर्ट देखिए।
बहरिया टाउन इंतजामिया ने अजहर सदीक एडवोकेट के तवस्सुत से फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। अपील में बहरिया टाउन की अराजी एक्वायर करने की इजाजत देने के फैसले को चैलेंज किया गया। बहरिया टाउन इंतजामिया ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने हक़ाइक़ के बरक्स फैसला दिया है। अपील कनिंदा ने एतराज़ उठाया कि रिंग रोड मंसूबे के लिए अराजी गैर कानूनी तौर पर एक्वायर की जा रही है, इसलिए सिंगल बेंच के फैसले को कलअदम करार देकर हुकूमत के इस इक़दाम से रोका जाए। फातिमा जिन्ना डिग्री कॉलेज चूना मंडी की इमारत तारीखी रिवायात की हामिल इमारत है। ये इमारत किन किन वक्तों में किन किन हालात और नामों से मौसूम थी, जानते हैं नुमाइंदा जुनैर अलियास की इस रिपोर्ट में। अंदरून शहर चूना मंडी में वाक़या फातिमा जिन्ना डिग्री कॉलेज। इस जगह पहले पुलिस स्टेशन था, मगर माजी में ये जगह देहान सिंह की हवेली के नाम से जानी जाती थी। देहान सिंह महाराजा रंजीत सिंह का खास सिपाही था, जो बाद में कोर्ट का प्राइम मिनिस्टर भी बना। ये हवेली 47 कनाल अराजी पर मबनी थी, जो तवज्जो न होने पर खंडरात में बदल गई। राजा रंजीत सिंह के दौर में ये बारूद खाने का काम भी देती थी। 1993 में इसकी बहाली के लिए इसे महकमा एजुकेशन को दे दिया गया। बाद में इसे कॉलेज बना दिया गया और आज ये फातिमा जिन्ना डिग्री कॉलेज के नाम से जाना जाता है, जहां तालिबात हसूल तलीम में मसरूफ हैं। यहाँ लाइब्रेरी के लिए भी जगह मुख्तस की गई है। यहाँ एक ब्लॉक ऐसा भी है जिस पर फ्रेस्को पेंटिंग्स मौजूद हैं और एक दीवार आज भी ज़माना कदीम की यादें ताज़ा कर देती है। नामवर गुलकारा साइमा जहां ने मौसीकारी की दुनिया में भी कदम रख दिया है। गुलकारा ने गज़लों के नए एल्बम की धुनें खुद तरतीब की हैं। इस हवाले से देखते हैं ताहिर बुखारी की ये दिलचस्प रिपोर्ट। गुलकारों का रुझान पॉप मौसीकी की जानब होने से मुल्क में गजल गायकी ज़वाल पजीर है, मगर आज भी ऐसे नाम हैं जो इस फन को जिंदा रखे हुए हैं। ऐसा ही एक नाम साइमा जहां का है। चलते हुए जज्बों को कुछ और हवा देना, जो अपनी गजलों के एल्बम की रिकॉर्डिंग में मसरूफ हैं। खास बात इनकी जानब से मौसीकी की धुनों को तरतीब देना है। सोची इतनी मौत भर मेरी मौत पहली। साइमा जहां का कहना है कि गजल गायकी इनका शौक है, जिसे परवान चढ़ाने में मसरूफ है। मैंने कोशिश की है कि इसको मैं आगे लेके चलूं, मौसीकी को, कि इसको मैं खुद तरतीब दिया। और सिंगिंग तो मैं कर ही रही हूँ, प्लेबैक सिंगिंग, रेडियो, टीवी, फिल्म्स के लिए मैंने बहुत गाया। साइमा जहां के एल्बम में 10 गजलें शामिल हैं, जिनमें एक गजल का वीडियो भी रिकॉर्ड हो चुका है। वो गजलों की रिकॉर्डिंग बॉबी स्टूडियो में कर रही है। गुलकारा साइमा जहां ने गायकी में अपनी पहचान बनाई है, ताहम आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो कैसी मौसीकार साबित होती हैं। कैमरामैन इकराम शाह के साथ ताहिर बुखारी, लाहौर न्यूज़। लाहौर न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको बाखबर रहना है तो जुड़े रहना होगा लाहौर न्यूज़ HD के साथ।